The topic is accounting principles and mostly known as GAAP, GAAP, that is generally accepted accounting principles used to describe rules adopted for recording of transaction and preparation and presentation of financial statement at a particular time. अब बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टू शो देयर फाइनेंशियल अकाउंट, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिनमें इनकम स्टेटमेंट या जिसको पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला जाता है, बैलेंस शीट, देन there is these two are important, financial the income statement and balance sheet. So now how to put things in that, जो भी आपने इंफॉर्मेशन उन अकाउंट्स में डालनी है, बैलेंस शीट में या पी एंड एल में या उससे पहले व्हाट एवर यू आर प्रिपेयरिंग लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग क्वेश्चन, वट एवर यू आर डूइंग, सो उनको कैसे आपको एक्चुअली रिकॉर्ड करना है चीजों को, हाउ द रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू हैपन, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दोज अकाउंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट for a particular time period, which is basically of annually basis, जो at a mandatory point you have to show, the company has to show. So for that there are principles, those are known as generally accepted accounting principles. So these are Indian exactly, because there are other principles also which are known as IFRS, International Financial Reporting Standards. वो किसी और वीडियो में करेंगे, but right now we are going to go with GAAP, exactly purely the Indian principles for Indian companies to showcase their financial statements. So there are many concepts or we can say principles in that in this GAAP, which are somewhere separated also, known as concepts and conventions, और कई बुक्स में आपको एक ही गो में सब मिल जाएंगे. Those are known as principles itself, which are in which it is 6 I am going to talk about in today's video. Separate entity concept, going concern concept, money measurement concept, cost concept, dual aspect concept, and accounting period concept. There are others also. We'll see whether I'm going to address those also in this video, or if it is going to be a longer one, so I'm going to take in another video. So right now we are going to talk about these 6 basic and very important principles, or which are known as concepts, accounting concepts also. और concepts क्या है? Assumptions. हम ये चीजें assume करके चलने वाले हैं जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अपनी जर्नल या लेजर या ट्रायल बैलेंस या पी एंड एल में या बैलेंस शीट में जब भी आप ट्रांजैक्शंस पास करेंगे, यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज assumptions, क्योंकि काफी चीजें ना इसमें आप assume ही करने वाले हो, बिकॉज लॉजिकली अभी अगर आप हम देखें तो हम उनके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं. सो they can be questioned, but so only these are known as assumption, not a kind of कि ये facts है. So the very first and very important concept is separate entity concept. So now separate entity concept is that the owner and the business are two separate entity, we can say. दोनों एक दूसरे से अलग है. जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे उस केस में हम इन दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे. बिजनेस अपने आप में एक अलग है, और जो उसका ऑनर है उसको हम बिजनेस के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे. ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस टू बी रिकॉर्डेड टू द बिजनेस. बिजनेस में कुछ भी हो रहा है, चाहे ऑनर ही कुछ लेके आ रहा है या कुछ निकाल रहा है कंपनी से, तो भी हम उसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे. ये नहीं है कि वो बंदा ऑनर है तो उसकी ट्रांजैक्शन पास नहीं होगी. कुछ भी अगर वो पैसा लेके आएगा कंपनी में, कैपिटल एज अ शो हो जाएगा, निकालेगा ड्रॉइंग्स शो हो जाएगा, और अगर कुछ भी इफ एंड बट कुछ भी और चीजें करता है, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू, अगर वो सैलरी क्लेम कर रहा है तो सैलरी के अकॉर्डिंगली हम एज एक्सपेंस शो कर देंगे. सो डिपेंड्स व्हाट ही इज डूइंग विद द बिजनेस. कुछ लेके आ रहा है या कुछ निकाल रहा है, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एज वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड फॉर अदर्स.
So this is separate entity concept कि business और owner are going to be two different entities. ठीक है, क्लियर? सो ऑनर कुछ भी करेगा तो उसका भी हम एग्जैक्टली एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, सारा रिकॉर्ड रखेंगे जैसा हम और लोगों के साथ करेंगे. सो दिस इज वेरी सिंपल फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज योर going concern concept. So going concern concept, as the name is suggesting you, going concern. गोइंग कंसर्न, अब क्या यहाँ पे मतलब है, ये हम अजम्पशन ही लेके चलने वाले हैं. सो ओनली सेड कि कॉन्सेप्ट नोन एज अजम्पशन. क्या अजम्पशन या क्या अज्यूम करके हम चलेंगे कि जो भी बिजनेस, चाहे वो आप आज स्टार्ट करने वाले हो, कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, what today or what when we are going to start our journal ledger, जब भी हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने लगेंगे तो हमने कंपनी ओपन करने के टाइम पे भी और अकाउंट्स चलाने के टाइम पे भी हम पहले से ही दिमाग में रख के चलेंगे दैट इट इज गोइंग टू बी अ गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न और बहुत लंबे टाइम तक के लिए, फेयरली लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर के लिए ये जो है ऑपरेट होगी कंपनी. कोई भी हम काम करते हैं, स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, तो चाहे वो विद इन सम मंथ्स वो बंद हो जाए. काफी स्टार्टअप फेल हुए हैं, काफी कंपनीज फेल हो जाती हैं, काफी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो फेल हो सकता है. सो बट हम कभी नहीं सोच के बिजनेस स्टार्ट करते कि ये 1 महीने में फेल हो जाएगा. सो करते हैं चाहे नहीं करते, बट द मेन पर्पस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज वॉट एवर यू आर गोइंग टू गो विथ वेन एवर द कंपनी इज देयर, द कॉन्सेप्ट विल बी कि आप बहुत, ये कंपनी काफी लंबे टाइम तक के लिए चलेगी, कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, और डिसॉल्व नहीं होने वाली अभी कुछ टाइम के लिए, कुछ नियर फ्यूचर में इट इज नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व. अगर आपने पहले ही सोच रखा है कि 1 साल से पहले बंद हो जाएगी, तो आपके, आप खुद देखिए आपके जो actions होंगे, they are going to be not a very optimistic, I can say, or very positive kind of. So only this concept is here. Accordingly you will create everything, आपके जो भी आगे के काम है accordingly you will run. So going concern, लंबे टाइम तक आपकी कंपनी जो है वो चलेगी और डिसॉल्व नहीं होगी, बंद नहीं होने वाली कंपनी नियर फ्यूचर में. दिस इज दिस कॉन्सेप्ट. Third concept and very very important concept of financial accounting, that is money measurement concept. Now what is money measurement concept? See, जितने भी हम concept करेंगे ना, उनका नाम अगर आपको याद है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपको ना कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी. यू कैन जस्ट ट्रांसलेट फ्रॉम दैट वर्ड मनी मेजरमेंट. 2 वर्ड अगर आप ध्यान से देखें तो इनका मीनिंग यहीं से निकल रहा है. मेजरमेंट होनी चाहिए मनी के परस्पेक्टिव में. सो दिस इज ओनली द मीनिंग, मनी मेजरमेंट होना चाहिए. मींस व्हाट इज इट? कुछ भी आप ट्रांजैक्शन पास करेंगे, कोई भी आप अकाउंटिंग एंट्री करने वाले हैं, उसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होना चाहिए. हमने अभी जर्नल एंट्रीज करे, इफ यू हैव सीन दोज वीडियोस और आपको पता है जर्नल एंट्रीज कैसे रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट हम उसमें करते हैं, और तभी आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे जब डेबिट के आगे लिखने के लिए कुछ अमाउंट होगा आपके पास और क्रेडिट में कुछ लिखने के लिए क्रेडिट अकाउंट के आगे भी कुछ अमाउंट होगा. अगर अमाउंट नहीं है तो फिर आप वो जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते. एंड बेसिकली बिकॉज इंडियन है हम और इंडिया के हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में रुपी में हम अकाउंट्स को एंट्रीज पास करते हैं. सो दैट unit is going to be the measurement unit, money measurement unit is going to be in rupee transactions in India. And very important, कुछ भी आप ट्रांजेक्शन पास करने वाले हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए. आप कह रहे हो कि भैया मैंने गिफ्ट दे दिया किसी को फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को इसकी ट्रांजेक्शन पास करनी है, लेकिन गिफ्ट की मुझे वैल्यू नहीं पता, मेरे को मिला है, मेरे को वैल्यू नहीं पता और मैं लिख भी नहीं सकती, सो वो ट्रांजेक्शन भी पास नहीं हो सकता आपका. सो वेरी सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर amount with you, as well as for authenticity purpose the bills for the same, invoices for the same as well. So money measurement, money में measure होना चाहिए आपका transaction, otherwise you cannot pass that transaction. Okay, so fourth concept is accounting period concept.
Accounting period concept, very simple. Don't go with this theory, the very lengthy theory one. Accounting period concept, अगर if you know, आपका जो accounts है ना, basically जो आप companies के records भी देखते हैं तो उन records को बोला जाता है annual reports. Annual मतलब 1 year, so yearly reports you will get. Any company's yearly report you will get. So accounting period concept says this only कि आप जो कंपनी अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे ना उसका वो सब कुछ बनाना पड़ेगा, उसके अकाउंट जो एक रेगुलर इंटरवल में बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कर सकते आप कि आप ना आज 13 जून से आप 13 जून से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और 13 जून अगले साल का भी आ गया, लेकिन आप जस्ट ट्रांजेक्शन ही पास करी जा रहे हो, आपने देखा ही नहीं आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपके टोटल एक्सपेंस कितने हुए, आपकी इनकम कितनी हुई, आपका बाकी की चीजें कितने हुए। सो एट रेगुलर इंटरवल यू हैव टू चेक इट आउट, क्या आपकी परफॉर्मेंस है, कितना आपको टैक्स आपको देना पड़ेगा, कितने आपके एक्सपेंस हैं, कितनी आपकी इनकम हो रही हैं, everything you have to check it out on a regular interval. So only here come this concept, accounting period concept, कि आपको regular interval में आप अपना जो है regular आप quarterly बना सकते हो, half yearly बना सकते हो, but अगर जो आपको रिपोर्ट्स बनानी है जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंट बनेगा, that is going to be for a yearly basis. So this is going to happen in accounting period, so that you can basic फंडा behind it कि आप सिर्फ आपको कॉपी पे या मैनुअली या कंप्यूटर पे उनको कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, उसको दिखाना नहीं है, एट द एंड उसको कैलकुलेट भी करना है कि कुछ बच भी रहा है कि नहीं बच रहा, और अगर नहीं बच रहा तो उसको कैसे और कंट्रोलिंग आप कर सकते हो, या अगर बच रहा है तो उसको और कैसे बढ़ा सकते हो, तो कस्टमर्स को और कैसी अच्छी सर्विसेज दे सकते हो। वो सब तब होगा जब आपके पास रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड तब होगा अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में ये सारी चीजें बनाएंगे, P&L एंड बैलेंस शीट मोस्ट इंपॉर्टेंटली। So this is fourth accounting period concept. Fifth concept is cost concept. Cost concept very important. जो भी आप assets अपनी records में दिखाएंगे, कुछ भी assets मतलब जो भी आप कुछ भी आप कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेके आ रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, कोई भी आप एसेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अपने कंपनी में ला रहे हो, जैसे आपने बिल्डिंग परचेज कर ली अपनी कंपनी के लिए, आपने उसमें मशीन्स लगाई, वो आपकी एसेट होगी, आपने उसमें प्लांट्स लगाए, आपने उसमें इक्विपमेंट्स लगाई, आपने फर्नीचर परचेज किया, बहुत कुछ आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेज किया, उसमें ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो आपने गाड़ियां परचेज करी, ठीक है। तो ये चीजों की जब आप रिकॉर्डिंग करोगे ना रिकॉर्ड्स पे, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करोगे कॉस्ट पे। So only this concept name is cost concept, या इसको historical concept, cost concept भी बोला जाता है। historical cost concept क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस आज की बात कर रही हूँ 2022 की, लेकिन मैंने जो अपनी एसेट्स खरीदी थी ना, जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2002 में, या हाँ 2002 में, तो मेरी अगर मैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ, अगर मैं गैप के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ, तो 2002 में मैंने 1 लाख की फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदा था, तो आज भी अगर मेरे अकाउंट्स खोल के देखे जाए तो मेरा वही वैल्यू होगा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज कि आपको जो एसेट्स आप एंटर करेंगे अपने अकाउंट्स में, वो कॉस्ट पे करेंगे, जो आपने पैसा पे किया होगा उन एसेट्स को परचेज करने के लिए, उस वैल्यू पे आपकी रिकॉर्ड होंगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू गैप। IFRS के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गैप। वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ कॉस्ट कॉन्सेप्ट एज पर गैप। Last concept, this is sixth one, not seventh one. So the last concept is dual aspect concept, which is known as the name is dual aspect, और duality भी इसको बोला जाता है, जो हमने जर्नल के टाइम पे भी करा था। दैट इज एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में, या आप कह सकते हो आप वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जिनके 2 एस्पेक्ट होंगे। अगर 2 एस्पेक्ट नहीं है, 2 एस्पेक्ट का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। ये जर्नल के टाइम पे मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि हर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप पास कर रहे हो, उसका डेबिट साइड भी होना चाहिए, उसका क्रेडिट साइड भी होना चाहिए। व्हाट इट मींस, फॉर एग्जांपल मैं दुकान पे गई और मैंने कुछ खरीदा, फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी खरीदी या पेन खरीदा,
तो जब मैं पेन खरीद रही हूँ उस शॉपकीपर से, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द पर्सन विल गिव मी पेन, आई गिव हिम रुपी, जितने का भी वो पेन होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का पेन है, तो मैंने उसको कितना दिया 10, और मैंने बदले में क्या लिया, पेन। तो दो अकाउंट मेरे पास आ जाएंगे, पेन जो मैंने खरीदा और पैसा जो मैंने दिया। अकॉर्डिंगली आई विल पास जर्नल एंट्री। तो गिव एंड टेक, बोथ दीज टू थिंग्स शुड बी देयर। गिव एंड टेक से ही आपका डेबिट क्रेडिट होगा। गिव एंड टेक, अगर गिव एंड टेक नहीं है ना, सिर्फ एक ही साइड का चल रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन ही आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लाइक आपका दोनों केसेस नहीं है। सो दिस इज इन केस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दैट देयर शुड बी, दैट एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैज अ two aspect fundas. If not, then there will be no transaction. You should have, for every debit there should be credit option also. और डेबिट और क्रेडिट ही नहीं, बल्कि हमारा एक कॉन्सेप्ट था थर्ड वाला, मनी मेजरमेंट, उनकी वैल्यूज भी होना चाहिए कि वो कितने की थी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वट एवर द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग. So with this, I'm going to end it. 6 concepts we have done. The rest part of the concept we'll do in the next video. This is part 1. Part 2 you can see for the next concepts. Okay, done. So going to end this.